Hello students, today we will start next part of human eye and colorful world. In last videos we have done description for the eye and the power of accommodation of the eye, and also we have done defects in our eye. And today we will start prism. So what is the prism? Prism is homogeneous transparent refracting medium, okay, usually made up by the glass, and this is bounded by the two non-parallel refracting surface which are inclined to each other at some angle. Here we can see the diagram for the prism. In this we have the five faces. Number 1 A, D, E, B, and A, D, F, and here we take another name G, right? And we have face A, B, C, and in the back side we also have one face D, E, F, and in the base we have the fifth number of the faces of this prism E, F, G, B. So there we have the five faces, okay, and in this we have this face is called the base. This is base of the prism. You can represent like this. Okay, so you can write here E, F, G, B. ये क्या बना रहा है आपका बेस. जो प्रिज्म का बेस होता है दैट इज ग्राउंडेड, ठीक है. ये नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है आपका, इसको नॉन रिफ्रैक्टिंग मीन्स यहां से कोई भी लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होकर नहीं पास होगी, राइट. ऑल्सो वी हैव द अनदर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए, बी, डी, A, B, E, D, and the face A, D, F, G. ये आपके होते हैं नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. Refracting surface which are inclined to each other at angle A. यहाँ पर आप लिख सकते हैं which are inclined to each other at an angle A. Right? AD is called the refracting edge which intersect between these two refracting surfaces. So you can write AD is called refracting edge. Okay, ये क्या करती है, इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इनका आपस में एक तरह से इंटरसेक्शन एच शो कर रही है. ओके, एंड ए बी सी, ए बी जी, सॉरी, हियर वी हैव द पॉइंट जी. सो ए बी जी, ओके, सो ए बी जी, हियर this is the principal section. Principal section. ये principal section क्या होता है आपका? Principal section is always perpendicular to the AD. AD के हमेशा क्या होता है, perpendicular होता है, ठीक है. And for the ray diagram we use always this face A, B, G. Okay, so now we draw the ray diagram through the prism. For the ray diagram, we take the principal section, okay, A, B, G here. So light rays coming from any object and then it incident on the principal section at the point this. Okay, you can say that at the point this is the point we can take M. Okay,
this is the point M, this is the normal at this point, and this is called the incident ray, incident ray, PM. ठीक है, PM is the incident ray which incident at the point M, and then at the point M refraction phenomena will take place. Refraction, ठीक है, क्यों होगा रिफ्रैक्शन? बिकॉज हियर द मीडियम विल बी चेंज. ये आपका फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकेंड मीडियम, ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका फर्स्ट मीडियम आ गया. सो व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट एट द पॉइंट M, देन एट दिस पॉइंट M रिफ्रैक्शन फिनोमिना विल टेक प्लेस. अब हमें पता है कि जो ये प्रिज्म है ये ग्लास का बना हुआ है. अगर हम कंसिडर ये करके चलते हैं कि जो फर्स्ट मीडियम है ये आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, तो एक तरह से ग्लास प्रिज्म आपका क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया. तो ये आपके पास क्या हो गया? डेंसर. ठीक है, अब जब लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो हमें पता है इट टर्न टुवर्ड द नॉर्मल. तो अब देखिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन तो क्या थी ये, बट इट टर्न टुवर्ड द नॉर्मल. ठीक है, तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रेज आ गई. M, यहाँ पर आप नेम दे दीजिए कुछ भी, MS. okay, then this refracting rays incident on the sides या on the edge of the prism AG at the point S. अब S पॉइंट पर फिर से आपके मीडियम चेंज हो रहे हैं, मीडियम चेंज हो रहे हैं. ये आपका रेयरर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फिर से रिफ्रैक्शन फिनोमिना यहाँ पर होगा. सो एट द पॉइंट S there will be again refraction phenomena, and here and dash is the normal for this point. ठीक है, अब ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है. now the light rays travel from denser medium to the rarer medium. ठीक है, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब लाइट रे आपकी किस तरफ डेविएट होगी? लाइट गो अवे, लाइट रे गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देखिए ये थी, बट नाउ इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. तो ये आपके पास क्या आ गया? अमर्जेंट एंगल आ गया. दिस इज द अमर्जेंट एंगल E. ठीक है, एंड हेयर वी कैन से दैट दिस इज द इंसिडेंट एंगल I. ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट रे, एंड दिस इज द अमर्जेंट लाइट रे coming from the prism after the refraction phenomena. Okay, and now this light ray, refracted light ray, we got MS. MS is refracted light ray, refracted light ray. Okay, ST, ST आपके पास क्या है? ST is emerging या emergent light ray. ओके, अब इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा इसको रब करके इसको बड़ा बना लेते हैं. इसमें एंगल्स किस तरह से आपके चेंज होते हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमिना. ठीक है, ये सब चीजें अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, राइट. नाउ लेट अस स्टार्ट डेरिवेशन. ओके, PM is the incident light ray at the point M, and here this is the angle of incident. I is the incident angle, then R1 is the refracted angle, okay, yeah, refraction angle. Then this refracted light ray incident at the point S on this face, and then at the point S again refraction phenomena will take place, and then we got the emergent light after the refraction phenomena is the emergent angle, and R2 you can say that R2 is the incident angle at the point S, right. So अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास इंसिडेंट लाइट रे है. इसका मतलब अगर ये विदाउट एनी रिफ्रैक्शन या विदाउट एनी डेविएशन इसमें से पास करती तो इसकी डायरेक्शन क्या होती? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती, राइट. अब अगर ये एंगल आपके पास आई है तो ये एक तरह से इसका मतलब कितना एंगल आ गया आपके पास? I माइनस R1. ओके, इस I माइनस R1 को हम लोग बोल देते हैं डेल्टा 1. क्या बोल देते हैं? डेल्टा 1. ठीक है, सो मैं यहां लिख देती हूँ डेल्टा 1 क्या है आपके पास? डेल्टा 1 इक्वल टू I माइनस में R1. ओके, नाउ अगेन वी कैन सी दैट this is the incident angle at the point S. okay, अब
अगर ये लाइट रे आपके पास सीधी चली जाती यहां से without any deviation in the path of the refracted rays, then we got the emergent light ray like this. But we know that it is not possible when the light ray travel from one medium to the another medium, then it deviate from its path. ठीक है, अपने पाथ से deviate हो जाती है. तो यहाँ पर आपका डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट रे जा रही है फ्रॉम द पॉइंट एस. तो लाइट आपकी किस तरफ चली गई? इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, देन वी गॉट द इमर्जेंट एंगल ई. ओके, अब यहाँ पर अगर मैं एक्चुअल डेविएशन देखूं, एक्चुअल डेविएशन फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट रे, वो क्या हुई? हमें लास्ट में देखो ये लाइट रे मिली, इमर्जेंट लाइट रे. इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन ये है, इमर्जेंट लाइट रे की डायरेक्शन ये है. सो टोटल डेविएशन इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से इस इमर्जेंट लाइट रे को क्या करो, पीछे की तरफ बढ़ा दो, लाइक दिस. ठीक है, ये क्या किया? पीछे की तरफ हमने इंक्रीज कर दिया, राइट. तो ये जो आपके पास एंगल आया, ये एंगल आपके पास क्या हुआ कि डेविएशन इन द पाथ ऑफ इनिशियली इंसिडेंट लाइट रे. इनिशियली इंसिडेंट लाइट रे के पाथ में कितनी डेविएशन हुई है वी कैन फाइंड आउट. इसको हम लोग नेम दे देते हैं डेल्टा. ठीक है, ये आपके पास हो गया एंगल डेल्टा. एंड डेल्टा रिप्रेजेंट द डेविएशन इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे. अब अगर आपके पास ये एंगल ई है, ये एंगल R2 है, तो ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा? E माइनस R2 हो जाएगा, बिकॉज दीज आर इक्वल टू ईच अदर, वर्टिकल अपोजिट एंगल. सेम हियर वी हैव द I इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल. ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल है ये क्या बच जाएगा आपके पास? E माइनस में R2, और इसको हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा 2. ठीक है, सो डेल्टा 2 इक्वल टू E माइनस R2. यू कैन से दैट. अब हमारे पास यहां पर देखो एक ये ट्रायंगल बन गई MS, और यहां पर इसको कुछ और नेम दे दीजिए, C नेम दे दीजिए. सपोज दिस इज द पॉइंट C. ठीक है, सो डेल्टा इक्वल टू आपके पास देखो, अब ये ट्रायंगल हो गई MSC. ठीक है, MSC ट्रायंगल में ये आपका आउटर एंगल हो गया या एक्सटर्नल एंगल आप कह सकते हो. तो मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा किसके इक्वल होता है? इंटरनली एंगल्स के सम के इक्वल होता है, विच आर मेड बाय द अपोजिट साइड. ठीक है, सो डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2, वी नो दैट दिस इज द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन. सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट I माइनस में R1 प्लस में E माइनस में R2, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा. और डेल्टा मैंने आपको पहले बताया, डेल्टा क्या है? डेविएशन. ठीक है, डेविएशन इन द पाथ ऑफ डेल्टा इज, ठीक है, डेल्टा इज डेविएशन इन द पाथ ऑफ initial direction of incident ray. राइट, तो ये हमारे पास आ गई. ठीक है, ये डेविएशन निकल के अब हमारे पास आ चुकी है. डेल्टा इक्वल टू I माइनस में R1 माइनस में R2 एंड प्लस में E. तो इसको आप इकट्ठा इस तरह से भी लिख सकते हो, I प्लस में E एंड माइनस R1 plus R2. We can write this. Okay. So this is the equation 1. Okay. Now also we can write that if we take a quadrilateral AMOS. देखो आप AMOS. ठीक है. So in the quadrilateral AMOS. ठीक है, यहां पर देखो आपके पास क्या आएगा? एंगल A प्लस में एंगल O, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये 180 डिग्री क्यों आएगा? क्योंकि जो ये आपके पास एंगल है ये क्या है आपका? 90 डिग्री. ये आपका नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री. ठीक है, अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो एंगल A प्लस में एंगल O प्लस में
एंगल ए, एंगल ए एम ओ प्लस में एंगल ए एस ओ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंगल ए एस ओ, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। हम लोगों को ये पता है क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी होती है कि चारों के चारों एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है 360 डिग्री होता है। अब ये एंगल और ये एंगल आप देखो ये क्या है आपके 90 डिग्री, बिकॉज इट मेड बाय द नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपके पास 90, ये भी आपके पास 90, तो एंगल ए प्लस में एंगल ओ प्लस 90 प्लस 90, दिस विल बी इक्वल टू 360 एंड देन एंगल ए प्लस में एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस में 180 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया था, जिसको समझ में ना आता हो तो वो इस तरह का भी मेथड ले सकता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इसको साफ करके। सो नाउ वी कैन से दैट एंगल ए प्लस में एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस में एंगल ओ, राइट। नाउ वी टेक अ ट्रायंगल MOS, MOS in ट्रायंगल MOS, हमें पता है कि तीनों के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। सो R1 प्लस R2 एंड प्लस में एंगल O, ये आपके पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। एंड एंगल R1 प्लस में एंगल R2, ये आपके पास क्या हो गया 180 माइनस में एंगल O, राइट। अब 180 माइनस में एंगल O अगर आप ऊपर देखें तो ये तो आपके पास क्या आया हुआ है एंगल A के इक्वल आया हुआ है। सो वी कैन से दैट R1 प्लस R2 दिस विल बी इक्वल टू एंगल A, राइट। दिस इज द इक्वेशन 2। तो यहां से अब आपको देखो एक चीज पता चल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एंगल A, ठीक है, विच इज मेड बाय द टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑल्सो एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आपको एक प्रॉपर्टी यहां से पता चल गई है। अब ये वैल्यू जो है हम लोग जो हमने इक्वेशन 1 निकाली थी उसमें पुट करते हैं, ठीक है। हमने निकाली थी डेविएशन इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, दैट इज द डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास एंगल I एंगल E माइनस में R1 प्लस में R2, ठीक है। R1 प्लस R2 आपके पास एंगल A के इक्वल है। सो वी कैन ऑल्सो राइट एंगल I एंगल E and minus में angle A, okay, and from this we again can say that delta plus में angle A this will be equal to I plus में E, ठीक है। So from this equation addition of the minimum deviation and the angle of prism this will gives the incident angle plus में emergent angle, okay. So these are the property for the calculation for the prism if you do, ओके। आपके सिलेबस में कोई भी डेरिवेशन फाइंड आउट करना नहीं है, डायरेक्ट आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन आई कहाँ से ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।